हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं कॉमन एरर्स लाया हूँ। आप जानते हैं कॉमन एरर्स कितना इम्पोर्टेंट होता है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। सो कॉमन एरर्स इन नाउन, व्हाट आर द रॉन्ग सेंटेंसेस विच आर गिवन इन द एग्जामिनेशंस। दिस इज़ द मॉडल एक्सरसाइज। इसका मतलब ये हुआ, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। These questions are previously asked examinations. So question number 1, a number of boys are reading this novel because this is one of the most important novel of India. No error. इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1, a number of boys are. Part 2, reading this novel. Part 3, because this is one of the most. Part 4, important novel of India. And Part 5, no error. No error का मतलब कि अगर सेंटेंस पूरा का पूरा सही है तो हमारा आंसर होगा 5, यानी कोई एरर नहीं है। लेकिन हमें इस सेंटेंस को ध्यान से देखना होगा। A number of boys are reading this novel because this is one of the most important novel of India. तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि पार्ट 4 हमारा आंसर होगा, क्योंकि पार्ट 4 में ही रॉन्ग दिख रहा है। सो दिस पार्ट नंबर 4 इज रॉन्ग। इम्पॉर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया, नो, दिस इज द one of the most important novels. So after one of the, we always use plural noun, that is novel. Novel is singular and it should be in the plural form. So our answer is part 4. Answer is part 4. So this is the answer already found. In question number 2, the book is popular and the sale is quite brisk in all major city. No error. So this book is part 1, popular and the sale is part 2, and is quite brisk in part 3. In all major city, it is part 4, and no error. If the sentence is correct, the answer will be part 5. So I think when we read this sentence, we get that, हम पाते हैं कि हमारा जो आंसर है वो पार्ट 4 होगा, क्योंकि इसी पार्ट में रॉन्ग दिख रहा है। ऑल मेजर के बाद सिटी को प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सिटी सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए पार्ट 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 3, हिज कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री. नो एरर. So in part 1, his company is. In part 2, one of the few company. We have already got the answer. Where is wrong? One of the few company. After one of the, we always use plural noun. Here company is written in the singular form. So हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 2 में ही रॉन्ग है। Second part is wrong. Let's start question number 4. On my way to the railway station, I met one of your friend named Neeraj. No error. In this part, on my way, there is no wrong. To the railway station, there is no wrong. One of your friend. In this part number 3, there is a wrong word, that is friend. Because we know that after one of, we always use plural noun, and here friend is written in the singular form. इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो पार्ट 3 रॉन्ग है, इसलिए पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर वी हैव सेंट, वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी. नो एरर. तो चलिए इसे देखते हैं, किस पार्ट में रॉन्ग है वो देखना है। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर, यहाँ पे 4 है। 4 के बाद हमेशा हम लोग काउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं।
यहाँ पे लेटर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए पार्ट 1 इज़ द करेक्ट आंसर, पार्ट 1 इज़ द रॉन्ग पार्ट एंड इट इज़ द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। In spite of having received all the necessary data, he did not take any decision because of extraneous reasons, no error। तो इस सेंटेंस में जब हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, in spite of having received all the necessary data, actually data is all the necessary data, data is already plural। He did not take any decision because of extraneous reasons, no error। So when we look carefully at this sentence, there is no wrong in this sentence, therefore the fifth part is the correct answer, no error। इसलिए हमारा आंसर होगा 5। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। Our housing society comprises of 6 blocks and 30 flats in an area of about 1000 square meters, no error। जब हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो पार्ट 1 में कोई गलती नहीं है, लेकिन पार्ट 2 में हमें गलती दिख रहा है। रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग पार्ट इज पार्ट 2। 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 के बाद फ्लैट्स है, लेकिन 6 के बाद ब्लॉक लिखा हुआ है। सो दिस पार्ट इज द रॉन्ग पार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। हियर द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। इन क्वेश्चन नंबर, हियर करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। इन क्वेश्चन नंबर 8, one of the most widely spread bad habit is the use of tobacco, no error। No error is the fifth part। When we look at the sentence carefully, one of the most, in part 1 there is no error, widely spread there is no error in part 2 also। Bad habit, this is the wrong part। Bad habit, क्योंकि bad के बाद जो habit है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द रॉन्ग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द सर्जेंट केम रनिंग फॉरवर्ड द कैप्टन विथ अ मैसेज, ऑल करेक्ट। चलिए इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। वन ऑफ द सर्जेंट, ये वन ऑफ द सारे सेंटेंस में रिपीट हुआ है, और हमने देखा है कि वन ऑफ द के बाद हम लोग प्लूरल फॉर्म में नाउन को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्जेंट जो है सिंगुलर फॉर्म में है। देयरफॉर पार्ट 1 इज द रॉन्ग पार्ट एंड आवर आंसर इज पार्ट 1। इन द लास्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 10, आई एम हेयरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक, नो एरर। फर्स्ट पार्ट इज आई एम हेयरिंग, some old song is the second part, and third part that I like, and fourth part is no error। अगर सेंटेंस सही है तो नो एरर होगा, अगर रॉन्ग है तो कौन सा पार्ट रॉन्ग है, पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। आई एम हेयरिंग, देयर इज नो रॉन्ग इन दिस पार्ट। सम ओल्ड सॉन्ग, हेयर वी गेट द रॉन्ग पार्ट, दैट इज़ ओल्ड सॉन्ग, क्योंकि सम के बाद हम लोग काउंटेबल नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसलिए सॉन्ग के जगह पे क्या होना चाहिए, सॉन्ग्स होना चाहिए। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट 2। सो दिस वे टुडे आई हैव ब्रॉट कॉमन एरर। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।